So, welcome everyone, and today we will discuss the amendments for the December 2020 examination of ICSI for the particular subject corporate funding and listings in stock exchanges. आज हम उन सारे अमेंडमेंट्स का जो अभी हमारे दिसंबर एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है उन पर डिस्कशन करेंगे. एंड फॉर योर इंफॉर्मेशंस, from time to time we have conducted various video classes wherein we have covered in details the amendments relating to the corporate funding and listing and stock exchanges. So apart from those classes, we will focus today mainly on the supplement जो आप लोगों ने देखा होगा. The institute has released it and it is available on the website as well for the रेफरेंस ऑफ दिसंबर 2020 एग्जामिनेशन. हम सारे उन्हीं अमेंडमेंट्स को कवर करेंगे. एंड बिफोर आई वुड लाइक टू कवर द अमेंडमेंट्स, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज और डोंट गेट पैनिक. कितने सारे अमेंडमेंट्स है सर, होगा कैसे, करेंगे कैसे सर, हम लोग को तो आता नहीं है. डोंट गेट so much of confused and panic because these amendments are basically a very easy relaxation or amendments which you can grab easily. Second, these amendments are mostly temporary relaxation. Temporary relaxation क्यों है सर? Temporary relaxation for one reason, because as you know, the institute, the Ministry of Corporate Affairs from time to time has issued various relaxation amidst of COVID-19 pandemic. तो उस पेंडेमिक को देखते हुए जो जो अमेंडमेंट्स आते गए, रिलैक्सेशन आते गए, वो टेम्पररी रिलैक्सेशन है. इट विल बी रीस्टोर्ड बैक टू द नॉर्मल पोजीशन. सो हमको ज्यादा फोकस जो कि उन टेम्पररी रिलैक्सेशन प्लस कुछ अमेंडमेंट्स जो इंस्टीट्यूट ने, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इश्यूड किए हैं, उसको देखना है. राइट? सो विल कवर दैट एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट that to keep this amendment class confined to the supplement issued by the Institute of Company Secretaries of India. आप उसी के supplement को देखेंगे तो हम उसी area को cover कर रहे हैं. Like I start with the exactly the flow will be like same what is there in the supplement. First change which Institute has mentioned in its supplement is relating to the eligibility requirement for IPO. So what exactly the change is there or what exactly the clarification is there? I will just show you this slide. You all can see. Basically, we have read that all the IPOs, like the company, if they want to come with the IPO, they need to satisfy these conditions. कुछ याद आ रहा है ऐसे? नेट टेंजिबल एसेट्स होना चाहिए उसका 3 करोड़ का, राइट, इन ईच ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, 3 फाइनेंशियल ईयर. ऐसा कुछ धुंधला धुंधला भी याद आ रहा हो तो दैट इज गुड इनफ. एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना चाहिए उसका 15 करोड़ का, राइट, ऐसा याद आ रहा है. And then there should be a net worth of at least 1 crore in each of the financial year, preceding 3 financial year. Plus, if there is a name change, then in one full year, the 50% of revenue from that new name change. Right? ऐसे conditions थे. उसी में conditions और था. वो क्या था? वो भी वहाँ लिखा हुआ था कि in case the eligibility conditions are not met, then even the company may come out, the issuer may come out with the IPO, provided that it is through book building process. And the issuer undertakes to allot at least 75% of the net offer to QIB, qualified institutional buyers. Means सर अगर ये ऑप्शंस को सेटिस्फाई नहीं भी करे तो वो ये अंडरटेकिंग दे कि हम 75% जो ओपन ऑफर का होगा, सॉरी जो ऑफर का होगा, आई विल अलॉट इट टू QIB पर्टिकुलरली. राइट? ये सब ने पढ़ा है, कुछ नया नहीं है. ओनली द क्लैरिफिकेशन इज दैट नॉट मियरली अंडरटेकिंग if the QIB do not subscribe to the extent of 75%. Means subscription भी बहुत जरूरी है. If they do not subscribe to the extent of 75%, then this IPO you cannot come out with. Right? Means not only undertaking दे रहे हो कि 75% हम उनको allot करेंगे, बल्कि उनका सब्सक्रिप्शन भी आना होगा. अब इस क्लियर? बस इतना याद रखिएगा, अब उनका सब्सक्रिप्शन भी आना होगा. Right? So that is what relating to the IPO. Next, what the institute has clarified in its MAT is relating to the relaxation in respect of timelines for activities of DPs, RTAs, RTA means registrar and share transfer agent, issuers, KYC registration agency जिसको KRA बोलते हैं, stock brokers. Exactly brief दे दूं आपको क्या background है भूमिका, so that you will understand it very easily.
आई एम श्योर अभी तक आप समझ ही रहे होंगे बहुत इजी कैसे अमेंडमेंट है. लाइक हुआ क्या कि we all know that we are passing through a very difficult phase which is COVID-19 pandemic. Everyone despite मतलब सिलेबस पता हो ना हो but COVID-19 pandemic के बारे में सब कुछ जानते हैं. तो वही वैसा हालत है. तो COVID-19 pandemic को देखते हुए the ministry has issued various relaxation. क्यों? लाइक से फॉर एग्जांपल ऑफिसेज ऑपरेट नहीं हो रही है, लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं. शुरू में तो जब लॉकडाउन लग गया तो ऑफिस भी नहीं गए, वी ऑल वेयर एट होम. तो उन कंडीशंस में अगर कोई डीमैट का रिक्वेस्ट कोई भेजा हो, कोई पहले से भेज के उस समय डिपॉजिट मतलब कंपनी में पहुंचा हुआ हो, पड़ा रह गया हो, तो सर व्हाट विल बी द रेमेडी? वो तो सारे वायलेशन हो जाएंगे. क्योंकि सर हम लोग को तो पता है कि डीमैट वेमेंट के रिक्वेस्ट आजकल 15 डेज में क्लियर करने पड़ते हैं इश्यूअर आरटीए को, राइट. केआरए केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसीज को केआरए डॉक्यूमेंट 10 वर्किंग डेज के अंदर अपलोड करने पड़ते हैं. तो सर ये सब तो वायलेशंस हो रहा था. फिर ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज है सर, वो करना पड़ता है. तो सर ये सारे वायलेशंस हो जाएंगे. लॉकडाउन में लोग घर पर बैठे हैं और वहां पर मेरे पास चिट्ठी आई हुई पड़ी है. डोंट वरी, द मिनिस्ट्री नोइंग प्रिटी वेल दैट इट्स अ वेरी पेंडेमिक स्टेज, दे हैव गिवन वेरियस रिलैक्सेशन. क्या? जस्ट सी ऑन द स्लाइड, इट विल बी वेरी क्लियर. प्रोसेसिंग ऑफ डीमैट रिक्वेस्ट. प्रोसेसिंग ऑफ डीमैट रिक्वेस्ट दैट मींस अगर आपको डीमैट रिक्वेस्ट पेंडिंग है, कोई भी ऐसा रिक्वेस्ट वगैरह भेजा है, तो इट विल बी लाइक द पीरियड ऑफ एक्सक्लूशन. अगर आप लिख रहे होंगे राइट साइड में, फ्रॉम मार्च 23rd टू 31st of July विल नॉट बी काउंटेड. मींस एज इफ आपने उस पीरियड के बीच में जमा दिया ही नहीं है, वो पीरियड ही काउंट नहीं होगा. सपोज करिए मैं जब जब काउंट करता हूं ना कि इट शुड बी विद इन 15 डेज, इट शुड बी डन फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीव्ड ऑफ द लेटर फॉर मतलब 15 डेज विल बी काउंटेड फ्रॉम दैट. सो whatever the period here mention is that will not be counted. For example, अगर मेरे पास कोई रिक्वेस्ट 21st को आई थी और उसके बाद लॉकडाउन वगैरह लग गए, राइट, तो वो 2 दिन वहां काउंट हुए, 22 and 21. उसके बाद कोई भी दिन दैट मीन्स 23rd से लेकर 31st जुलाई तक काउंट ही नहीं होगा. सर क्या बोल रहे हैं? यस, काउंट ही नहीं होगा, राइट. इज इट क्लियर कि वो दिन काउंट ही नहीं होंगे? क्लियर? हाँ सर, अब समझ में आ रहा हम लोग को. वी आर क्लियर कि वो दिन काउंट ही नहीं होंगे. एब्सोल्युटली क्लियर, राइट. सो सर ये जो क्लियर आप काउंट नहीं होंगे बोल रहे हैं सर, ये बेसिकली क्या 31st जुलाई तक था? नो, फॉर योर एग्जामिनेशन रेफरेंस, बिकॉज एज आई टोल्ड यू विल कीप इट टिल द पॉइंट दिसंबर 2020 के लिए. बट अगर कोई इंप्रेशन जमाना चाहे तो प्लीज लिख लीजिए कि पोस्ट दैट, बिकॉज 30th जून को उन्होंने एक्सटेंडेड किया था 31st जुलाई तक. उसके बाद मिनिस्ट्री हैज कम आउट ऑन 29 जुलाई और ये टाइमलाइन बढ़ा दी 31st दिसंबर तक, 30th सितंबर तक. इसकी भी टाइमलाइन 30 सितंबर तक एंड इसकी टाइमलाइन 31st दिसंबर तक. मतलब केआरए की टाइमलाइन 31st दिसंबर तक. बट ये सर आप यहां क्यों नहीं लिख दिए? क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि आई एम कीपिंग इट कन्फाइंड टू द पॉइंट, लिमिटेड पॉइंट फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिसंबर 2020 एग्जामिनेशन, राइट. अब सभी को क्लियर होंगे? हो गया? यस सर, अब क्लियर हो गया ये वाला. तो दिस इज द रिलैक्सेशन इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ रिक्वेस्ट. नेक्स्ट कम्स आसबा, ASBA, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट. सर ये तो हम लोग सुने हैं, ये तो हम लोग पढ़े हैं सर आईपीओ में, आईसीडीआर में. इसमें तो कुछ नया नहीं है सर. एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट में एब्सोल्युटली राइट, इसमें कुछ नया नहीं है सर. इसमें एक यूपीआई आपका दिख रहा है, अमेंडमेंट में लिखा हुआ है यूपीआई. यूपीआई इज यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस. आई विल अगेन रेफर कि अगर आप स्लाइड देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा, हम लोग इस पर बहुत डिटेल में वीडियो क्लासेस किए हैं. But again, for your clarity, I'm just clarifying. UPI, the SEBI has introduced the concept in the November 2018 itself. To make it simplify, just look at the screen. Now you will recollect कि why UPI has come. UPI के benefit क्या है? पहला तो the basic intention of SEBI is to reduce time period for listing. जो अभी 6 working days है, SEBI wants to reduce it to 3 working days. Earlier it used to be more than 6, it was reduced to 6 working days with the ASBA process. Now they want to reduce it to 3 working days. So they want to reduce time period for listing. Second, इसके benefit ये है कि it will be implemented in phase wise. UPI एक दिन में सबके लिए mandatory नहीं होगा, right?
सर यूपीआई क्या होता है वो तो बता दीजिए। बताता हूं। यूपीआई अगर आप लोग ऐप अगर यूज करते होंगे तो इट्स अ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। मींस दैट मींस लाइक जैसे मोबाइल से आप लोग नेट बैंकिंग करते हो वैसे ही यूपीआई एक प्रोसेस है जो वर्चुअल उसका एड्रेस होता है, राइट? देयर इज अ वर्चुअल एड्रेस फॉर एवरी लाइक यूपीआई। उसमें क्या होता है ना, वंस यू मेक अ पेमेंट, आप मोबाइल ऐप में सब कुछ कर रहे हो, आपने जो अमाउंट सपोर्ट किया, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप अमेजन पे यूज करते हो, वॉलेट यूज करते हो, राइट? पेटीएम वॉलेट में मनी रखते हो, वहां से पे डायरेक्टली कर देते हो। दैट कंसेप्ट एग्जिस्ट हियर ऑल्सो। व्हाट यू डू बेसिकली, जब भी कोई सब्सक्रिप्शन आता है तो आप उस सब्सक्रिप्शन के लिए एप्लीकेशन करते हो उसके ऑनलाइन पोर्टल पे जाके, राइट? वहां पर जाकर आपको बोलेगा आपके डिटेल्स दीजिए, यूपीआई का किस बैंक के साथ मेंटेन्ड है, कहां पर क्या आपकी आईडी है, यूपीआई आईडी, आपने वो सब दिया। देने के बाद द मोमेंट यू कंप्लीट ऑनलाइन एवरीथिंग एंड ऑनलाइन में आप यूपीआई का अपना डिटेल देने के बाद देयर विल बी ए मोबाइल मैसेज ऑन योर मोबाइल, लाइक अ मैसेज विल कम ऑन योर मोबाइल आस्किंग यू टू कंफर्म कि वो यूपीआई जो आपने ब्लॉक किया अमाउंट वो आप ही के मोबाइल से किया हुआ ऐप से। वंस आपने कंफर्म किया, एप्लीकेशन इज डन। समझे प्रोसेस कितना इजी? जैसे क्रेडिट कार्ड वगैरह होता है, समझो कंसेप्ट को। क्रेडिट कार्ड आप शॉपिंग में जाते हो, क्या करते हो? स्वाइप करते हो, राइट? स्वाइप किया, स्वाइप करने के बाद पैसा कट गया, उसमें आप पासवर्ड देते हो। अगर आप पासवर्ड नहीं दो, सपोज करिए मैं नेट से कर रहा हूं, नेट से क्रेडिट कार्ड का पेमेंट किया, तो आप हमेशा ध्यान देंगे आपके मोबाइल पे एसएमएस आता है, आप उस एसएमएस से वेरीफाई करते हो। दैट मीन्स यू आर द पर्सन हु इज एक्सेसिंग द डिटेल। Similar concept exists here also, right? That is what the UPI is. सर यूपीआई लाने का दरकार क्यों पड़ा? ऑनलाइन एप्लीकेशन कर देते ना, ऑनलाइन एप्लीकेशन तो कर देते, पेमेंट कहां से करते? तो कंपनी के पोर्टल पे पेमेंट करने के लिए दे हैव यूजिंग द यूनिफाइड पेमेंट इंटरसोर्स, राइट? इंटरफेस। सो दैट इज यूपीआई। सर अब एक चीज बताएंगे, यूपीआई आने के बाद ये आसबा रहेगा? अरे आसबा तो रहेगा, ये आसबा इज अ बैंकिंग चैनल जिसमें आप बैंक के थ्रू जाके एप्लीकेशन कर देते हो। अगर जिसको नेट बैंकिंग आता हो वो आसबा से करे। ग्रेजुअली द मिनिस्ट्री विल मूव टू द कंप्लीट यूपीआई इंटरफेस, दैट इज द फेज 3। अगर आप देखेंगे फेज वाइज स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इन नवंबर 2018 व्हेन दे कम आउट विद अ प्लान, दे से कि फेज 1 विल स्टार्ट फ्रॉम 1 Jan 19, मतलब जिसमें उन लोगों ने एक अल्टरनेटिव ऑप्शन दिया। तो आप देखे होंगे 1 जनवरी 19 के बाद जितने भी इशू आए सब में यूपीआई एज एन ऑप्शन था, मतलब आप चाहो तो यूपीआई मोड से कर सकते हो, दैट इज एन ऑप्शन। वो 3 मंथ्स के लिए या फिर बोला 5 मेन बोर्ड इशू है तब तक कंटिन्यू रहेगा, एंड इट कंटिन्यूड टिल 30 जून। 1 जुलाई से उन्होंने सेकेंड फेज चालू किया। सेकेंड फेज में क्या था मालूम है? सेकेंड फेज में उन्होंने एक कंसेप्ट जो होता है ना, फिजिकल फॉर्म जाके बैंक में जमा देने वाला, वो कंसेप्ट को डिसकंटिन्यू कर दिया। सर मतलब समझे नहीं, ये वाला बताएंगे फेज 2? बताते हैं। आसबा जरूरी नहीं है कि ऑनलाइन वाले ही अवेल करें, ऑफलाइन में भी अवेल करते हैं। कैसे? आप कंपनी का फॉर्म लेते हो, इशू का फॉर्म को पूरा डिटेल भरते हो, डिटेल भरने के बाद जब फॉर्म पूरा भर जाए तो आप उसमें अपने बैंक का डिटेल देते हो जिसमें आपका आसबा फैसिलिटी है, और वो जाके आप सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक्स होते हैं ना, उसमें किसी भी बैंक में जाके आप जमा दे देते हो एप्लीकेशन, और वो लोग जमा लेते हैं इशू जब खुलता है तब। तो आप इतना मेहनत करते थे, तो सेबी ने बोला अब जो सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक में जाके जमा देने वाला कंसेप्ट है उसको हटाओ, बिकॉज ग्रेजुअली यू हैव टू कम आउट विद द यूपीआई मोड। आप यूपीआई का डिटेल्स लीजिए, यूपीआई से वेरीफाई कराइए, भले ही वो फॉर्म जमा दे रहा हो बट नॉट विद द आसबा फैसिलिटी, राइट? सो दैट वाज द सेकेंड फेज दैट स्टार्टेड फ्रॉम 1 जुलाई, एंड मिनिस्ट्री ने बोला ये कंटिन्यू रहेगा बिकॉज वंस दे आर श्योर द फेज 3 विल बी इंप्लीमेंटेड, जहां पर ये फुल्ली इफेक्टिव हो जाएगा, सबको यूपीआई लाना पड़ेगा, मीन्स अपने अपने इशू में। बट इन बिटवीन फेज 2 चल ही रहा था कि फेज 2 चलते चलते दिसंबर में दे हैव डिसाइडेड इट टू कंटिन्यू टिल 31 मार्च 2020। बट आप सभी जानते हैं कि मार्च 2020 में एक ऐसी आपदा आई हमारे इंडिया पे, लाइक दो स्टार्टेड ग्लोबली नवंबर, बट वी हैव सीन इट इन मार्च एट अ पैनिक स्टेज, और यू कैन सी एट अ पीक स्टेज। सो सारे लॉकडाउन वगैरह लग गए, तो सेबी देयर आफ्टर डिसाइडेड टू फॉर द टाइम बीइंग कंटिन्यू दिस फेज 2 ओनली till the time they feel like it's a comfortable zone and phase 3 can be implemented.
सो अभी अगर आप पूछोगे तो हम फेज 2 में ही चल रहे हैं यूपीआई के, राइट? तो यूपीआई इज अ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, याद रखिएगा, राइट? अब क्लियर रहेगा सबको? सर अब समझ गए सर। तो यूपीआई ये हुआ। एंड आसबा क्या किया ना, गवर्नमेंट ने राइट इश्यू के लिए मैंडेटरी कर दिया, मींस यू हैव टू हैव द आसबा फैसिलिटी फॉर द राइट इश्यू मैंडेटरली, सो दैट अगेन सम रोबस्ट स्टेप टुवर्ड्स द डिजिटलाइजेशन। सो ये एक और अमेंडमेंट है, और ये बेसिकली आपको बार बार याद आ रहे होंगे देखने पे, हम लोगों ने वीडियो क्लास में और भी डिटेल में किए हैं। We will try to, matlab, if required, to come out with the more detailed session for this, but then yes, this session since relates to the amendment, so we are keeping it confined to the amendments only, right? To the supplement amendments only. Next is the additional relaxation in relation to the SEBI listing regulation. यहाँ पर क्या हुआ सर? यहां पर क्या हुआ ना, मिनिस्ट्री ने बहुत कुछ चेंजेस आपको हाईलाइट किया इंस्टीट्यूट ने। लाइक आपके मैट में देखिए, उन्होंने बोला है मिनिमम पीरियड जो है एडवर्टीजमेंट का 5 डेज रिड्यूस होकर 2 डेज हो गया है फॉर दी बोर्ड मीटिंग्स वगैरह। फिर आप जो लॉस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट का इंटीमेशन है वो 2 डेज आप काउंट नहीं करोगे। देन दे हैव ऑल्सो मेंशन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लेके आप सबमिशन कर दो, फाइलिंग कर दो, राइट? ऑल दिस रिलैक्सेशन आर देयर। फिर आप टेबुलेट जब हमारा प्रेजेंटेशन देखोगे याद आ जाएगा, वी हैव डन इट ऑल्सो, बट जस्ट आई विल लाइक टू हाईलाइट कि रेगुलेशन 29 में याद आ रहा है, सेबी लोडर का बात कर रहे हैं, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। सभी के दिमाग में तो घुस ही रहा होगा प्लीज। तो सेबी लिस्टिंग एंड ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में देयर इज अ रिक्वायरमेंट अंडर रेगुलेशन 29 दैट यू विल सबमिट द इंटीमेशन ऑफ मीटिंग्स इन एडवांस टू द स्टॉक एक्सचेंजेस। कौन सी मीटिंग्स? जहां पर फाइनेंशियल रिजल्ट डिस्कस हो रहा हो, जहां पर बायबैक प्रपोजल आ रहा हो, जहां पर वॉलंटरी डिलिस्टिंग या राइट इश्यू वगैरह हो रहे हो, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड हो रहा हो। सिमिलरली all this relaxation means all this announcement will be given at least 2 working days in advance. 2 working days, Saturday Sundays count नहीं होते हैं, please mind it. 2 working days advance में बताओगे, excluding the date of meeting and excluding the intimation of meeting, ये दोनों को छोड़कर। और in case of financial results 5 days in advance, मतलब बहुत ज्यादा ही एडवांस में बता देते आप। 2 working days माने समझ रहे हो, no Saturday Sundays, and 5 days means 5 clear days, बट ये भी 5 दिन ज्यादा ही हुए। तो ये सारे इंटीमेशन प्रायर किसको दोगे? स्टॉक एक्सचेंज को। किस रीजन से? सो दैट पब्लिक में हल्ला हो जाए कि कुछ आ रहा है कंपनी का, राइट? सो दिस वाज द प्रायर इंटीमेशन रिक्वायर्ड। नाउ सेबी व्हाट हैज डन, इट इज अ टेम्पररी रिलैक्सेशन, अगेन माइंड इट is टेम्पररी रिलैक्सेशन। सेबी ने 31 जुलाई 2020 तक एक 17 अप्रैल को सर्कुलर लाया, एंड दे डिसाइडेड दैट ये जो टाइम पीरियड ऑफ इंटीमेशन है इसको रिड्यूस करके ओनली 2 डेज कर दिया जाए। ओनली 2 डेज, नो 2 वर्किंग डेज, नो 5 डेज, ओनली 2 डेज इंटीमेशन, राइट? टिल द टाइम 31 जुलाई 2020। नाउ दैट टाइम पीरियड इज ओवर। तो होगा क्या? एग्जाम में सपोज करिए क्वेश्चन आया, बोर्ड मीटिंग वाज कॉल्ड ऑन 29th of July, right? 29th of July 2020. It was an urgent meeting where the bonus issue or right issue was required to be considered. The company has intimated 2 days in advance. Now the company has received a notice from stock exchange that in terms of regulation 29, the company should have informed 2 working days in advance. और पूरा गांव आप लोग साथ में लिख के आओगे, यस यस दे आर एब्सोल्युटली राइट। रेगुलेशन 29 जो रट के गया होगा पूरी रात भर, वो तो यही लिखेगा, है ना? प्लीज, हाँ आप लोग समझ रहे हो ना? आई एम श्योर, ठीक, थैंक यू। सो ये जब आप लिख रहे हो 2 वर्किंग डेज इन एडवांस, यही चीज चेंज हो जाता है 2 डेज, लाइक कब? टिल द टाइम 31 जुलाई। तो आप जो स्मार्ट होंगे, जो हमारा क्लास अभी देख ही रहे होंगे, वो लोग क्या लिखेंगे? देयर वाज अ टेम्पररी रिलैक्सेशन गिवन बाय सेबी। किसी को डेट भी याद रहा 17 अप्रैल, वो भी लिखेगा, नहीं तो ऐसे भी चलता है ना, बढ़िया ही है। इतना लिखोगे काफी है कि सेबी हैज रिलैक्स्ड इट फॉर द टाइम बिंग टिल 31 जुलाई टू मेक इट 2 days only, so there is no violation by the company, right? Similarly, यहीं पर आप नोट कर लीजिए, रेगुलेशन 39(3) में जब बोलता है कि जब जब कोई सर्टिफिकेट लॉस हुई हो और कंपनी के पास ऐसी इंफॉर्मेशन आए कि आपके शेयर सर्टिफिकेट, हमारी शेयर सर्टिफिकेट गुम हो गई है, तो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज को ऐसी नजर में आते ही इंफॉर्मेशन 2 दिन के अंदर बताएगी कि भैया इनकी सर्टिफिकेट गुम हो गई है, राइट?
ऐसा तुरंत बताएगी 2 दिन के अंदर कि इनकी सर्टिफिकेट गुम हो गई है। बट सिंस लॉकडाउन वगैरह चल रहा था तो कैसे बताएगी? अगर सपोज करिए कोई नोटिस आ भी गया हो, फॉर एग्जांपल कोई कहीं से भेज भी दिया हो, अब बोलोगे सर पोस्टल ही नहीं चल रहा था उस समय। आई अंडरस्टूड, पोस्टल नहीं चल रहा था, मेल तो चल रहा था, कोई मेल पे बता दिया हो। घर से बैठे बैठे बहुत लोग निकाले ना, घर में हम लोग बैठ बैठ के यही सब काम किए, घर में सफाई किए, कोई कुछ किया, कभी कोई कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखे भी। बट इनिशियली तो हम लोग ऐसा लगा कि लॉकडाउन 10 दिन का होगा तो 10 डेज की 10 एक्टिविटीज, तो उसमें सब निकाल निकाल के अपने शेयर सर्टिफिकेट का मेल भी दे दिए होंगे। वो मेल देने से अगर अब आप ऑफिस में हो नहीं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, हाउ यू विल वेरीफाई, यू विल सेंड इट टू योर आरटीए, सो ऑल दिस डिफिकल्टी विल बी देयर। सो डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट के लिए क्या किया, बोला वो जो 2 डेज इंटीमेशन है ना उसको अभी भूल जाओ। कब तक भूल जाओ? 31 मई तक भूल जाओ। बोला 31 मई तक, चाहे 2 दिन में बताओ चाहे 20 दिन में बताओ, देयर इज नो वायलेशन। तो अब एग्जाम में क्या जाएगा? सपोज करिए अ शेयर होल्डर लॉज अ कंप्लेंट रिगार्डिंग अ डुप्लीकेट इशू ऑफ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट and he wrote to the company on 23rd of April. He sent a mail on 23rd April, sent a reminder on 26th of April, sent a reminder on 30th of April, and finally he sent a notice on 3rd of May that the company is in a violation and company didn't intimate within 2 days to the stock exchange. पूरा गांव लिखेगा हाँ हाँ 3 रिमाइंडर ये लिखा, वेरी बैड। और रेगुलेशन 39 जो पढ़ के जाते हैं ना पूरा मगअप, वो लिखेंगे रेगुलेशन 39 का ग्रॉस वायलेशन, ग्रॉस वायलेशन, जो उसमें फ्लो में यही लिखेंगे, वायलेशन आपका हो जाएगा। बिकॉज आपको लिखना होगा कि टेम्परेरी रिलैक्सेशन है, इन 2 डेज को नहीं काउंट करेंगे टिल 31st ऑफ मई, राइट? सो यू विल नॉट काउंट द लॉस शेयर सर्टिफिकेट इंटीमेशन टिल 31st मई, 2 डेज विल नॉट बी काउंटेड। और प्रायर इंटीमेटेशन 2 डेज होगा ओनली टिल 31st जुलाई। इज इट क्लियर? यस और नो? नाउ साइमल्टेनियसली इसी के साथ रिजल्ट्स का भी एक था। इफ यू रिमेंबर, स्टॉक एक्सचेंज का फर्स्ट 3 क्वार्टर का रिजल्ट टाइमिंग होता है विद इन 45 डेज। दैट मीन्स फर्स्ट 3 क्वार्टर मीन्स जून एंडिंग, सितंबर एंडिंग, दिसंबर एंडिंग, इनके 45 डेज में करते हो। लाइक जून का 14 अगस्त, सितंबर का 14 नवंबर, राइट? सिमिलरली दिसंबर का 14 फैब। सो ये सारे रिजल्ट्स के डेट हैं। बट लास्ट क्वार्टर का 60 डेज होता है। आई एम श्योर अभी आप लोग सबको पता होगा कि मार्च वाले क्वार्टर का 60 डेज होता है, मीन्स 30th मई 30। बट अब बताओ सर लॉकडाउन हो गया, रिजल्ट कैसे बनेगा, कैसे ऑडिट होगा, कैसे प्रिपेयर होगा, कौन जाएगा? तब तक तो लॉकडाउन बढ़ ही जा रहा था हमारा। इफ यू रिमेंबर, लॉकडाउन लगते ही गया, शुरू में लगा छोटा होगा, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर जाके अनलॉक चालू हुआ, और अभी भी हम लोग अनलॉक से गुजर रहे हैं। तो दैट मीन्स कि सर वो मई वाला रिजल्ट कैसे हुआ होगा सर? इसीलिए मार्च क्वार्टर के लिए सेबी ने रिलैक्सेशन लाया था एंड उसकी टाइमलाइन बढ़ा दी थी टिल 31st ऑफ जुलाई। 26 जून को सर्कुलर था सेबी का, एक्सटेंडिंग इट टिल 31st ऑफ जुलाई। दैट मीन्स मार्च क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो आप 31st जुलाई तक भी करोगे चलेगा। तो सर 30 मई को नहीं करना होगा? नहीं, 31st जुलाई तक चलेगा, राइट? सर और भी कुछ चेंजेस? यस। अभी हम लोग स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेशन वगैरह देते हो ना, तो आप लोग देखते होंगे हम लोग साइन वाइन करते हैं, उसमें कंपनी सेक्रेटरी का साइन वाइन रहता है। सर अभी घर पे जब काम कर रहे थे तो स्टॉक एक्सचेंज ने टाइम तो बढ़ाया ये सब का, जैसे 30 मई का अभी आप बढ़ाए कि सर वो 31st जुलाई कर दिया रिजल्ट का टाइम। अभी आप बताए सर डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट का टाइमलाइन 31st मई तक बढ़ा दिया था। अभी आप बताए सर प्रायर इंटीमेशन का 2 डेज कर दिया था टिल 31st जुलाई। सर उसमें भी तो होता था ना, कई बार वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, सीएस नहीं आया, सीएफओ भी नहीं आया, बड़े लोग हैं और ज्यादा केयरफुल रहते हैं, राइट? बिकॉज कंपनी के एटलीस्ट दे आर, यू कैन से, द की पर्सन। तो सर उस केस में लोग साइन कैसे करेंगे? और आजकल तो सर शुरू में इतने पैनिक होते थे, घर पे पेपर आता था तो 2 दिन बाहर धूप में टांग देते थे हम लोग तो छत पे। सर नहीं ऐसा भी करते होंगे कुछ, तो सर उसमें कैसे करें सर? नहीं, उसमें ऐसा किया जाएगा, इसीलिए द कंसेप्ट ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, आप किसी पेपर पे यू कैन यूज और यू कैन साइन बाय वे ऑफ डीएससी। सो सेबी ने क्या बोला? सेबी ने बोला कि एक काम करो, आप डीएससी वगैरह से सारे सबमिशन सबमिट करो। 17 अप्रैल को नोटिफिकेशन लाया था कि टिल 30th जून sign all the papers through digital signature mode. There will not be an issue. There will be no query. सर डिजिटल मोड से साइन हो जाएगा? यस, इट कैन बी। सर एक चीज बताओ ना, ये 30th जून तक ही था क्या? नहीं, अभी जिसको और ज्यादा पढ़ना हो वो अपडेट करके रखे अपने आप को कि नाउ इट इज एक्सटेंडेड टिल 31st ऑफ दिसंबर।
31 जुलाई को एक सर्कुलर आया और इसको एक्सटेंड कर दिया टिल 31 दिसंबर। तो सर आपने यहां क्यों नहीं लिखा 31 दिसंबर? क्योंकि मैं फिर बताया ना कि हम लोग अभी सिर्फ दिसंबर 2020 पर्पस से पढ़ रहे हैं, तो मैंने नहीं लिखा, राइट? इसलिए मैंने मेंशन किया टिल 30 जून। तो ये सब भी याद रखिएगा। कोई कंपनी का आ जाएगा कि कंपनी है सबमिटेड द, या फिर लिखेगा कंपनी वाज रिक्वायर्ड टू सबमिट अ नोटिस बट ऑन दैट डे कंपनी गॉट टू नो दैट CS and CFO आर नॉट कमिंग टू द ऑफिस। Now how they will sign? They couldn't sign the paper and the company could not submit in time. So you will write users of DSC. It was allowed till 30th June and presently till 31st December. Right? सब समझ में आ गया सर? सर और भी कुछ वेबर आया है? सर हाँ एकदम। एक वेबर ऑफ पब्लिकेशन न्यूज़पेपर आया। जो जो इंटीमेशन मैंने बताया ना, वो 29(3) में आपको बताया ना, जो इंटीमेशन देना पड़ता है कि हम अपनी फाइनेंशियल रिजल्ट्स की मीटिंग कर रहे हैं 5 डेज इन एडवांस, जिसको 2 डेज कर दिया टिल 31 जुलाई। उनके इंटीमेशन को कंपनी को न्यूज़पेपर में भी छापना पड़ता है, मतलब साइमल्टेनियसली न्यूज़पेपर में छापना पड़ता है इंटीमेशन। तो सर न्यूज़पेपर में कैसे छपेगा उस समय लॉकडाउन वगैरह में? इसीलिए ये भी टेम्पररी रिलैक्सेशन है। द गवर्नमेंट हैज मेंशन कि दैट सिंस न्यूज़पेपर एजेंसी, न्यूज एजेंसी आर आल्सो वर्किंग इन अ लिमिटेड वे, so there is a complete exemption from publication of these advertisement. कब तक? till 30th जून तक। सर ये इनिशियली 30 जून तक ही आ गया? नहीं, इनिशियली 30 जून तक नहीं आया। पहले ये अराउंड एंड मार्च में 26 मार्च को सेबी सर्कुलर आया जिसमें 15 मई तक था, 15 मई तक, एंड देन लेटर ऑन 12 मई को एक सर्कुलर आ गया जिसमें ये बढ़ा के टिल 30 जून तक कर दिया। तो सर अभी भी इसका एग्जम्पशन है? नहीं, कितना एग्जम्पशन लोगे आप? क्या मतलब देना नहीं चाहते हो क्या न्यूज़पेपर में? अब नहीं एग्जम्पशन है इसका, अब इसमें कोई भी एग्जम्पशन नहीं है वेबर ऑफ पब्लिकेशन न्यूज़पेपर। इट वाज अर्लियर, एंड अर्लियर टिल व्हेन? टिल 30th जून। इज इट क्लियर? अभी तक एकदम फ्लो समझ में आ रहा है ना बराबर? हाँ बस गुड। सर और भी कुछ? यस, और क्या है ना, आपको पता होगा AGM वगैरह में भी बहुत बड़ा चेंज आया। सभी सुन रहे होंगे AGM वर्चुअल कॉन्फ्रेंस मोड से हुई है, इट्स अदर ऑडियो विजुअल मीन्स या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इसके पहले आपको बता दूं, सेबी में देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि टॉप 100 जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं उनको अपने फाइनेंशियल ईयर के एंड होने में विद इन 5 मंथ्स, लॉ में क्या है मालूम है? कंपनीज एक्ट में AGM टू बी हेल्ड विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर और 15 मंथ्स फ्रॉम द लास्ट प्रीवियस मीटिंग, राइट? ये है कंपनीज एक्ट का प्रोविजन। सेबी थोड़ा स्ट्रिक्ट है, हमेशा LODR थोड़ा स्ट्रिक्ट रहता है। अगर आप लोग पढ़े हो तो याद आ रहा हो तो थोड़ा बहुत लॉकडाउन में भूल से पढ़ लियो, घर पे बैठ के पढ़ रहे हो तो उसमें लिखा हुआ रहता है सर LODR में कि विद इन 5 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर यू विल सबमिट द, सॉरी यू विल हैव योर AGM विद इन 5 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो दिसंबर में अगर फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, सर दिसंबर में होता है? हाँ, कुछ कुछ कंपनियों का होता ही है ना, याद है ना? वो तो कंपनीज एक्ट में भी अलाउ है कुछ कुछ कंपनियों को टू हैव द कैलेंडर ईयर एज अ फाइनेंशियल ईयर। सो दिसंबर अगर फाइनेंशियल ईयर एंड है तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, दैट मींस दे हैव टू हैव बाय 31st मई। और अगर मार्च फाइनेंशियल ईयर एंड है तो उनका कब होगा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। सो दैट मींस बाय मई और अगस्त उनके AGM हो जाने चाहिए। लेकिन आप तो जानते ही हो, एज आई टोल्ड यू, मई तक कैसे होगा? लॉकडाउन वगैरह इतना, राइट? उस समय तो लॉकडाउन ही चल रहा था। अगर AGM वीडियो कॉन्फ्रेंस से भी करते तो लोग इतने पैनिक थे कि ऑर्गेनाइज करना, लोगों से कोऑर्डिनेट करना वाज दैट डिफिकल्ट। नोटिस बनाना, नोटिस फाइनलाइजेशन करना, बोर्ड मीटिंग करना, अप्रूव करना नोटिस को, इट वाज चैलेंजिंग। सो द सेबी हैज गिवन ऑल दीज, जो दोनों के है ना 31st मई या फिर 31st अगस्त जो हो जाने चाहिए थे 5 मंथ्स वाले क्राइटेरिया, उनको बढ़ा के they have made it till September, right? सर बेनिफिट कैसे हुआ सर? सी लुक एट दिस स्क्रीन, वी हैव डिस्कस। अगर ये सब देख के आपको याद आ रहा होगा, हम लोग बार बार रिपीट कर रहा हूं कि हम लोग कुछ कुछ वीडियो क्लासेस भी किए थे इस पे, वहां पर हम लोग डिस्कस किए थे। यहां पर 30 जून मत लिखिए, इसको 31st मई। तो जिनके 31st मई तक AGM होने थे उनके 30th सितंबर तक अलाउ किया, जिनके 31st अगस्त तक होने थे उनको 30th सितंबर तक अलाउ किया। ये किन लोग के होते हैं? टॉप 100 के, राइट? इन लोग को अलाउ किया बिकॉज देयर आर सर्कुलर्स बाय द सेबी
SEBI has come out with a circular on the 26th of March and 23rd of April, coming out with this offer that the AGM जो 5 महीने में होने थे अब सितंबर तक करिए, राइट? देयर इज नो बार। तो सर एक बात बताइए ना, हम लोग सुने अभी अभी कि सारे कंपनी एजीएम दिसंबर तक कर सकती है, वो मतलब आरओसी फाइनली ब्लैंकेट एक्सटेंशन दे दिया 3 मंथ्स का, जब भी लास्ट ड्यू डेट हो उससे दे दिए हैं, एमसीए दे दिया है, बट जो टॉप 100 कंपनीज हैं, टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज, उनके लिए आज भी टाइमलाइन यही है। आप लोग को इसलिए गुमराह कर दिया जाएगा, लिखा जाएगा मतलब XYZ लिमिटेड विच इज अमंग्स द टॉप 20 लिस्टेड कंपनी and the company was considering to have its AGM on 31st of August, but later on the company has come across a relaxation issued by the MCA stating that the AGMs everything can be held on the blanket extension by the ROC by further 3 months. Accordingly, the company has postponed and the AGM was held on the month of 23rd October or 24th October. आपको लिख के देगा, is there any non-violation or the company has complied with. पूरा गांव लिख के आएगा, the company has complied with. Reason being, हम लोग को ये लगेगा कि आया था एमसीए का रिलैक्सेशन, बट वो टॉप 100 के लिए नहीं है। टॉप 100 के लिए आज भी सेबी का 5 मंथ्स वाला जो है वो एक्सटेंड होकर 30th सितंबर तक ही गया, राइट? सो टॉप 100 के लिए 30th सितंबर ही है, बाकी सारी कंपनियां अभी दिसंबर तक कर सकती है। और दिसंबर भी नहीं बोलूंगा, रादर वो सबको 3 महीने का एक्सटेंशन मिला है, मींस व्हाट एवर द लास्ट ड्यू डेट है उनकी, उन सबको 3 मंथ्स का एक्सटेंशन का ड्यू डेट मिला है, राइट? सिमिलरली एजीएम मोर और लेस नॉट सेबी रिलेटेड पार्ट है, इस एमसी रिलेटेड पार्ट कि एजीएम भी आप लोग देखे होंगे सब वीडियो कॉन्फ्रेंस वगैरह से अलाउ हो गई। अर्लियर द टाइम फ्रेम वाज अलाउड टिल 30th सितंबर, तो हम लोग दिसंबर टर्म के लिए जब पढ़े तो यही पढ़ेंगे, बट लेटर ऑन मिनिस्ट्री हैज मेड इट अ ब्लैंकेट टिल 31st दिसंबर, राइट? बट एग्जाम के लिए अगेन एज एन आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन दैट इट इज वी आर कीपिंग इट कन्फाइंड टू December 2020 एग्जामिनेशन ऑफ ICSI, राइट? सो दीज आर द चेंजेस रिलेटिंग टू जनरल मीटिंग। सर इसके बाद और कुछ ऑफर है, मीन्स अमेंडमेंट है, यस, अमेंडमेंट्स रिलेटिंग टू द राइट इशू और इशू, ये भी हम लोग बहुत डिटेल में कर चुके हैं, तो मैं मतलब आपको बार बार याद दिला रहा हूं सो दैट यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दोज अदर क्लासेस आल्सो। हियर वी हैव डिस्कस द कांसेप्ट ऑफ राइट एंटाइटलमेंट, RE। सर ये आदि क्या होता है? राइट एंटाइटलमेंट होता है। सर ये क्या है? आई विल जस्ट टेक यू टू द स्क्रीन फ्लो डायरेक्टली सो दैट यू विल अंडरस्टैंड हियर। आप लोग को राइट एंटाइटलमेंट के बारे में तो जानते होंगे ना। सपोज करिए हम राइट शेयर होल्ड करते हैं, मींस सॉरी शेयर होल्ड करते हैं, तो द कंपनी इज कमिंग आउट विद द राइट इशू। द मोमेंट द कंपनी कम्स आउट विद द राइट इशू, द कंपनी विल गिव मी द फर्स्ट ऑप्शन ऑफ राइट्स, लाइक से फॉर एग्जांपल आई एम होल्डिंग 10 शेयर्स, और अगर एक पर एक शेयर्स आया तो हमको 10 के बदले 10 शेयर्स मिलेंगे, राइट? वही होता है मेरा एंटाइटलमेंट, दैट इज कॉल्ड राइट एंटाइटलमेंट। बट अभी तक आप लोग सुने होंगे राइट एंटाइटलमेंट आपका कोई भी जो हो आपके शेयर्स पे आता है, आप वो फॉर्म भर के या इलेक्ट्रॉनिक मोड पे ओके करते हो आपको शेयर्स मिल जाता है, नहीं करते हो आपको एंटाइटलमेंट नहीं मिलता है, या फिर आपको लगता है कि ये एंटाइटलमेंट किसी और को देना है, मेरे फ्रेंड्स को देना है, मेरे ब्रदर को देना है, तो आप उसको रिनाउंसमेंट कर देते हो, राइट? और वो रिनाउंसमेंट जो जिसको मिलता है वो अप्लाई कर देता है फॉर द पर्पस ऑफ राइट शेयर्स। अभी तक यही प्रोसेस था। The ministry has introduced this framework on 22nd January 2020. What is this framework? Framework is right entitlement. Right entitlement, RE. बोला right entitlement will be given in the DMAT form. ये आपको डीमैट फॉर्म में दिए जाएंगे, मतलब आपके डीमैट अकाउंट में आके क्रेडिट हो जाएगा ये। सर मेरा अगर फिजिकल है, मेरा डीमैट अकाउंट ही नहीं है, खुलना पड़ेगा आपको। इश्यू के एक दिन पहले खोल के आपको राइट इशू मींस राइट एंटाइटलमेंट जो है वो जमा लेना पड़ेगा, मतलब कंपनी को आपको बताना पड़ेगा कि मेरा डीमैट अकाउंट देखो ये है और ये मेरे अकाउंट में आप डाल दीजिए, राइट? शेयर्स आपको खुलवाना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ राइट एंटाइटलमेंट, सो दैट अब मजबूरी में गवर्नमेंट आपसे डिजिटलाइज मोड अडॉप्ट करवा रहा है। आप राइट एंटाइटलमेंट के लिए डीमैट खोलोगे, तो जब डीमैट खोलोगे तो अपने शेयर्स को डीमैट करोगे धीरे धीरे। And the ministry, if you look at the recent developments,
आप सेबी, मिनिस्ट्री, ऑल दे आर वर्किंग कि मोर और लेस डीमैट में जाइए। फिजिकल ट्रांसफर बंद हो चुके आप लोग को पता है। सो सिमिलरली दे हियर इंट्रोड्यूस अ कंसेप्ट ऑफ शेयर्स क्रेडिटिंग, मींस एंटाइटलमेंट क्रेडिटिंग इन अ डीमैट फॉर्म। ये एंटाइटलमेंट है, नॉट शेयर्स, RE। और ये ट्रेडिंग भी होंगे, ये आपके क्रेडिट हो जाएंगे डीमैट आईएसआईएन अकाउंट में एक दिन पहले इश्यू ओपन होने के। अब इसके बाद इनका ट्रेडिंग भी होगा मार्केट में। सपोज करिए आपको बेनिफिट क्या होगा, सपोज करो हमको पहले क्या होता था, अनाउंसमेंट के लिए खोजना पड़ता था किसी को कि कोई ले लो, एंटरटेनमेंट किसी को चाहिए तो ले लो, मेरा 200 शेयर आया हुआ है, बताना पड़ता था, और नहीं बताए तो पड़ा चला जाता है सही। अब आप क्यों ट्रेडिंग भी कर सकोगे, सपोज करो 200 RE आए तो मैं स्टॉक एक्सचेंज में जिस दिन इश्यू खुलेगा ना उस दिन ट्रेडिंग चालू होता है। जिस दिन इश्यू खुलेगा उसी दिन ट्रेडिंग चालू होगा, और इश्यू बंद जिस दिन होगा उसके 4 दिन पहले राइट इस RE का ट्रेडिंग बंद हो जाएगा, 4 days प्रायर। 4 days प्रायर इट विल बी क्लोज्ड। तो ट्रेडिंग होगा बाकायदा, लाइक if I have 200 RE, I will sell on the stock exchange. I can sell in the on market, I can sell off market. Off market कैसे? सपोज करिए मैंने डीमैट में ही अपने ब्रदर को ट्रांसफर कर दिया, डीमैट टू डीमैट अकाउंट, वो हो गया ऑफ मार्केट। और मैंने मार्केट में किसी को बेच दिया तो वो हो गया ऑन मार्केट। तो सर ये आपके पास तो आप बोल रहे हो सर राइट एंटाइटलमेंट आया ही नहीं, आपने कैसे ट्रांसफर कर दिया ऑन मार्केट? ये एंटाइटलमेंट है, इसके दाम भी RE के हिसाब से डिटरमाइंड होते हैं, नॉट शेयर्स। जो भी है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप रिलायंस का भी शेयर आके गया तो REL RE मतलब RIL RE बोल के उसका कोड चालू होता है। उस कोडिंग में क्या होता है ना, RIL RE में द एग्जैक्टली थिंग इज दैट दिस विल ऑल्सो बी ट्रेडेड, और इसी को मैं बेच के यहां पर अपना जो बेनिफिट वगैरह वो लेना है ले लूंगा। और मेरे को अगर लगता है मेरे को राइट एंटाइटलमेंट लेना है तो मैं राइट एंटाइटलमेंट ले लूंगा, राइट। सो दिस इज व्हाट द कंसेप्ट ऑफ RE, राइट एंटाइटलमेंट्स। सर ये राइट इशू में आता हो, बाकी ये सब में नहीं आता है। नो, राइट इशू में आएगा ना, एंटाइटलमेंट तो आपको और किसी में आता नहीं है, राइट। एंटाइटलमेंट आपको न्यू इशू में आता नहीं है। ओनली द राइट इशू इज देयर वेयर यू गेट डेवलप्स द एंटाइटलमेंट इन टर्म्स ऑफ योर शेयर्स। सो दैट गिव्स यू द क्रेडिबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी कि आप अपने राइट एंटाइटलमेंट को चाहे तो ट्रेड करके बेच दो अगर आपको नहीं लेना है तो। क्लियर? एंड ये ट्रेडिंग खत्म होते ही 4 days क्लोजर के पहले इनकी ट्रेडिंग बंद होती है। ट्रेडिंग बंद होने के बाद अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में इनके प्राइस भी खोजोगे नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर उसकी ट्रेडिंग बंद हो जाती है, राइट। सो डीमैट अकाउंट इज मैंडेटरी, मोर सो टू प्रमोट मोर एंड मोर शेयर होल्डर्स टू ओपन द डीमैट अकाउंट। और फिजिकल का ही बताया ना कि फिजिकल वालों को भी डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। तो सर एक बात बताइए ना, ये जो लॉकडाउन में अभी राइट इश्यूज वगैरह आए ये कैसे आए होंगे? इसके लिए एक फैसिलिटी यूज किया गया, मैं इस पे बाद में आऊंगा अगर आप लोग को पता होगा। RWEP, वेब बेस्ड एप्लीकेशन पोर्टल। यहां पर क्या हुआ ना, RWEP मिनिस्ट्री ने, मैंने सेबी ने 6 मई को एक सर्कुलर लाया और कहा कि सिंस हमको पता है अभी फिजिकल वाले लोग जिन लोगों को डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है मैंडेटरी, वो कैसे खुलवाएंगे, कहां किसकी ऑफिस जाएंगे, किसको केवाईसी देंगे? केवाईसी देंगे तो आप 3 दिन छत पे सुखा दोगे उसके पेपर को, कब देखोगे, कब पढ़ोगे, सैनिटाइज मारोगे तो पेपर गीला हो जाएगा, राइट। सो दे हैव इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ RWEP। ये सब लिखिएगा मत, RWEP, वेब बेस्ड एप्लीकेशन पोर्टल। What exactly it is? It is introduced as an alternative facility to RE. Again, I am repeating, alternative facility means RE तो रहेगा, ये अल्टरनेटिव एडिशनल मतलब जहां पर नहीं मिल रहा है वो ये ले लेगा। RWEP, RWEP क्या है? आप वेब पोर्टल पे जाओगे जो आपको सर्विस प्रोवाइडर देंगे, आप वहां पर जाकर एक एप्लीकेशन सबमिट करोगे, आपके बिहाफ में जो शेयर्स है वो डीमैट में रख दिए जाएंगे, राइट, और अलॉट हो जाएंगे। अलॉट होने के 6 मंथ के अंदर आपको अपना डीमैट अकाउंट देना है एंड देन वो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में चले जाएंगे। क्लियर? इज इट क्लियर? आपके अकाउंट डीमैट अकाउंट में रखे जाएंगे इन द कस्टडी ऑफ वेब मतलब सर्विस प्रोवाइडर, वहां पर रहेंगे। कंपनी का शेयर्स अलॉट हो गया, अलॉट होने के बाद आपको बोला जाएगा 6 मंथ के अंदर अंदर अपना डीमैट अकाउंट दीजिए so that these shares will be transferred. तो अल्टीमेटली अगेन
In short, if you ask me, your shares are kept in the demat form only. No more physical. Correct? So this is relating to the right entitlement. Another thing, right issue में क्या क्या चेंज आए? चेंज इन साइज आप कर सकते हो. आप फास्ट ट्रैक इशू में रिलेटेड कुछ चेंजेस आए. ऑब्जर्वेशन लेटर, डिस्पैच ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट और आजबार आरी हम लोग डिस्कस कर चुके. ऑब्जर्वेशन लेटर वगैरह में चेंजेस आए. तो सर ये सब भी चेंजेस हम लोग को पढ़ना है. हाँ, जान के रखना है, ये भी सब टेम्पररी है, याद रखिएगा, वन टाइम टेम्पररी. सर ये ऑब्जर्वेशन लेटर में क्या चेंज आया? अगर आप लोग को पता होगा कि सेबी हैज अ कंसेप्ट कि कोई भी इशू वगैरह होता है तो दे कम आउट विद द ऑब्जर्वेशन लेटर. और ऑब्जर्वेशन लेटर की एक टाइम पीरियड होता है. जब भी आपको इशू लाओ तो आप एक ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करते हो किसके पास? स्टॉक एक्सचेंजेस. स्टॉक एक्सचेंजेस अपने कमेंट देता है, दैट इज ऑब्जर्वेशन लेटर. मीन्स इफ दे गिव यू क्लियर कि गो अहेड, तो दैट मीन्स विद इन 12 months यू कैन ओपन द इशू. राइट? अब हुआ क्या, सपोज करिए 12 months टाइम पीरियड रहता है, हम तो सोचे खोल लेंगे. अब मेरा टाइम लैप्स हो रहा है, से फॉर एग्जाम्पल 1 अप्रैल को, मैं तो लॉकडाउन हो गया. मैं सोचू क्या करूं, तो सेबी ने क्या किया, जिसके भी टाइम पीरियड ऑब्जर्वेशन लेटर के 1 मार्च, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, 1 मार्च से लेके 30 सितंबर के बीच में अगर एक्सपायर कर रहे हैं, 1 मार्च से लेके 30 सितंबर के बीच में अगर एक्सपायर कर रहे हैं, तो उनकी वैलिडिटी को फर्दर 6 मंथ बढ़ा दिया. राइट? मतलब सपोज करिए अगर 30 अप्रैल को मेरा एक्सपायर कर रहा है तो 6 मंथ बढ़ा दिया, तो प्लस 6 मंथ मीन्स मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, टिल 30th अक्टूबर, 31st अक्टूबर आई कैन गो अहेड. राइट? तो सर ये उसी समय दिया क्या कि टिल 31st अक्टूबर तक? नहीं, ये उस समय दिया सितंबर तक का. उसके बाद रिसेंटली ऑन 29th of September मिनिस्ट्री हैज इंट्रोड्यूस कि जिनकी वैलिडिटी 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च 2021 के बीच में एक्सपायर भी हो रही है, उनकी भी ड्यू डेट मानी जाएगी एज इफ एक्सपायरिंग ऑन 31 मार्च 2021. मतलब सपोज करिए किसी का अगर वैलिडिटी 5 अक्टूबर को एक्सपायरी हो रहा हो, तो माना जाएगा वो 5 अक्टूबर को नहीं, 31 मार्च 2021 को हो रहा है. बट सर ये आप यहां क्यों नहीं लिखे? अगेन वापस रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ सप्लीमेंट मटेरियल इंस्टीट्यूट का दिसंबर 2020 के लिए फोकस कर रहे हैं. वहां पर टाइमलाइन क्या है? 1 मार्च टू 30 सितंबर, जो सेबी ने इनिशियली लाया था कि अगर इन बिटवीन पीरियड में एक्सपायर हो रहा हो तो आपकी वैलिडिटी विल बी एक्सटेंडेड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ. ये 21 अप्रैल को सर्कुलर आया था, जिसमें उन्होंने जो भी ऑब्जर्वेशन लेटर एक्सपायर हो रहे हो 1 मार्च से 30 सितंबर को, वो 6 मंथ बढ़ जाएंगे. राइट? सर समझ गए सर. और भी कुछ चेंजेस आए? यस, राइट इश्यू में बहुत सारे और चेंजेस आए. जैसे क्या, आप जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है ना, हम लोग अभी तक सुने थे कि इन एनी सब्सक्रिप्शन और इशू 90% सब्सक्रिप्शन शुड बी देयर. सेबी ने क्या किया, बोला 90% का दरकार ही नहीं है, बोला अभी 75 करा लो. बोला क्यों? बोला मार्केट की पोजीशन बहुत खराब है. और सीरियसली ट्रस्ट मी, these are the temporary relaxation have come only for one reason, that market condition is not that good. We all know money liquidity is not there, prices are falling down. तो इन सब को कंट्रोल करने के लिए बोला अगर 75% लोगों का सब्सक्रिप्शन ही आ जाए तो वो गुड है. ये कब तक वैलिड है? ये वैलिड है मार्च 2021 तक. तो सर अब अगर अभी कोई ऑफर लिख दे, ओपन हुआ, और अगर एग्जाम में लिख दे कि उसमें 80% सब्सक्रिप्शन आया, राइट, तो आप लोग प्लीज गुमराह होकर मत लिखिएगा कि 90% नहीं आया, 90% नहीं आया. आप लिखिएगा 75% अगर आ गया तो इट्स अ वैलिड वन. राइट? अभी मीन्स लॉकडाउन पीरियड से स्टार्ट होकर लेके मार्च 2021 तक. देन ट्रिगर ऑफ चैप्टर 3 ऑन इश्यू साइज ऑफ 25 करोड़. अगर आप लोग को पहले पता होगा कि पहले इश्यू साइज 10 करोड़ होने पे यू हैव टू फाइल अ लेटर ऑफ ऑफर विद द सेबी. मीन्स अगर इससे कम साइज का है तो नहीं फाइल करना है. तो मिनिस्ट्री ने क्या किया, इसी थ्रेशोल्ड को बढ़ा दिया और अब कर दिया 25 करोड़. मीन्स अगर आप इससे कम का ला रहे हो तो बोला हमारे पास आओ ही मत, गो अहेड, क्योंकि मार्केट में पैसे नहीं है. बोला इतना टाइम मत लो कि आप मेरे पास आओगे, लेटर ऑफ ऑफर फाइल करोगे, हम ऑब्जर्वेशन लेटर देंगे. बोला जी लो अपनी जिंदगी, अगर 25 करोड़ से नीचे तक का है, गो अहेड, इश्यू इट इन द मार्केट. राइट?
ASBA we have discussed. Beside this, nowadays like जो ऑफर लेटर वगैरह भी है, you can send it in the mode of electronic mode. सर ये इलेक्ट्रॉनिक मोड कब तक अलाउड है? इनिशियली इट वाज अलाउड टिल 31 जुलाई एग्जाम पर्पज से, और अभी का मेरे को पूछोगे तो दिस यू कैन गिव द ऑफर डॉक्यूमेंट इन द रिलैक्सेशन मींस इन द इलेक्ट्रॉनिक मोड नाउ टिल 31 दिसंबर, राइट? इलेक्ट्रॉनिक मोड में दे सकते हो आप, कब तक दे सकते हो? 31 जुलाई तक। सर आप 31 जुलाई के बाद वाले बोले, वो इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि दिसंबर 2020 के लिए यही याद रखना है कि 31 जुलाई तक इट इज अलाउड। और ज्यादा लिखना है तो ये लिखेगा कि रिसेंटली द टाइमलाइन हैज बीन एक्सटेंडेड टिल 31 दिसंबर 2020, कि आप हार्ड कॉपी में नहीं भेज के इलेक्ट्रॉनिक भेजोगे तब भी कोई पाप नहीं है, राइट? सो दीज आर द रिलैक्सेशन व्हिच पर्टेन टू द राइट इशू। द लास्ट वन it says changes in the size up to 50%. If you recollect, आपके सेबी में ही हम लोग पढ़े थे कि if there is any change in the size, मतलब अगर हम 200 करोड़ का ला रहे हैं और बाद में उस साइज को चेंज करें, सोचे अच्छा इसको एक काम करो 200 करोड़ तो नहीं, इसको 400 कर लो, सीधा डबल कर दिए, राइट? या फिर हम सोचे 200 तो नहीं होगा, 100 कर दिए, सीधा आधा कर दिए। तो जब जब पहले 20% से ज्यादा का वेरिएशन होता था तब तब आप वापस जाते थे सेबी के पास नया फाइल करने, क्या? लेटर ऑफ ऑफर। जब जब पहले इश्यू साइज चेंज होता 20% से ज्यादा तो आप सेबी के पास फिर से जाते, स्टॉक एक्सचेंज के पास, कि फिर से हमारा नया लेटर ऑफ ऑफर लो, राइट? बट अभी के मार्केट कंडीशन को देखते हुए सेबी बोला हो ही सकता है कंपनी सोचे 200 करोड़ लाने का, लेकिन मार्केट में फिर देख के लगे नहीं आएगा 200, 120 ही आएगा, या देख के लगे 200 से ज्यादा आ सकता है, तो बोला इस 20% को एक बार चेंज कर दो। तो उन्होंने सीधा इशू साइज में बोला अगर 50% तक का चेंज इधर उधर है तो हमारे पास मत आओ। मतलब 200 करोड़ का साइज को अगर आपने 120 बना लिया है, विद इन 50% है ये, तो आप मेरे पास मत आइए, राइट? डोंट कम बैक टू अस, गो अहेड एंड कम आउट विद द इशू। प्रमोटिंग कंपनीज टू सर्वाइव, promoting companies to get a liquidity. So ये कब तक अलाउड है? ये सर 31 दिसंबर तक अलाउड है। सर ये अभी और कुछ एक्सटेंशन होगा? हाँ जी, अभी इसको एक्सटेंशन कर दिया गया 31 मार्च 2021 तक। जो पहला वाला थ्रेशोल्ड देखे ना यहाँ पर 75%, उसी के बराबर इसको भी रख दिया गया है, मार्च 2021 तक। चेंज इन इश्यू साइज। तो सर रिलैक्सेशन राइट इश्यू में क्या पढ़े कि अगर आप मिनिमम सब्सक्रिप्शन 75% भी आए तो जी लो अपनी जिंदगी मार्च 21 तक। अगर आप अपने इश्यू साइज को 50% तक भी चेंज कर रहे हैं, वो चाहे राइट इश्यू में हो, चाहे आईपीओ में हो, चाहे एफपीओ में हो, तो वो भी आप 50% तक चेंज कर सकते हो। डोंट कम बैक एंड अगेन फाइल अ न्यू लेटर ऑफ ऑफर। तो सर ये तो समझ गए, और भी कुछ है? और है कि अगर आपका से फॉर एग्जाम्पल इश्यू साइज पहले था कि 10 करोड़ ही इश्यू साइज तक आप सेबी के पास फाइल नहीं करते थे, अब हो गया है 25 करोड़। मींस अगर आपका उसके अंदर है तो डोंट कम टू द सेबी अगेन, डोंट कम टू द स्टॉक एक्सचेंज अगेन, राइट? सो दीज आर द रिलैक्सेशन फॉर द राइट इश्यू। फ्यू एग्जांपल्स आर देयर जो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। राइट एंटाइटलमेंट लाइक रिलायंस हैज कम आउट, जिसने वो वैप आर वैप जो मैंने पढ़ाया ना उसकी फैसिलिटी दी थी। सिमिलरली कुछ और है लाइक पीवीआर भी आया था, आदित्य बिरला भी आया था, स्पेंसर भी आया। ऑल दे हैव यूज्ड दिस फैसिलिटी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, आर वेब वगैरह अल्टरनेटिव, और सबने इलेक्ट्रॉनिक कॉपी डिस्पैच किए। ये आपके एग्जांपल्स के लिए सो दैट आपको लगे थोड़ा प्रैक्टिकल भी है। कुछ और चेंजेस क्या है वो है प्राइसिंग में। क्या चीज में सर? प्राइसिंग में। हाँ, प्रेफरेंशियल इशू में प्राइसिंग में। सर ये क्या है? प्रेफरेंशियल इशू जानते ही हो, जब जब यू आर अलॉटिंग इट टू सेलेक्टिव ग्रुप ऑफ पीपल्स, सो दैट इज अ कॉल्ड प्रेफरेंशियल इशू। तो सर इसमें प्राइसिंग में रिलैक्सेशन लाने का बैकग्राउंड समझ लो। प्राइसिंग में रिलैक्सेशन लाने का वन इंपॉर्टेंट रीजन है, ओनली इंपॉर्टेंट रीजन इज दैट दे वांट अ क्लियर कट कि प्राइस इतने डाउन हो चुके हैं, मार्केट में पैसा है नहीं। और अगर आप प्राइसिंग नॉर्म्स जो अभी एग्जिस्टिंग वाला है, एग्जिस्टिंग वाला याद आ रहा है, 26 वीक्स का वॉल्यूम वेटेड एवरेज या फिर लास्ट 2 वीक्स का वॉल्यूम वेटेड एवरेज, 26 वीक्स और 2 वीक्स। बोला अगर 2 वीक्स तो हो सकता है गिर गया लॉकडाउन में, बट 26 वीक का लेते हैं सर तो बहुत ज्यादा हाई प्राइस आता है, और उस पर कौन लेगा अभी, राइट? क्योंकि 26 वीक्स माने ऑलमोस्ट 6 मंथ। तो सपोज करिए मैं अप्रैल में पैसा लाने का सोचूं या मई में लाने का सोचूं, तो अप्रैल का प्राइस, मार्च, फेब, जैन,
दिसंबर, नवंबर, ये सारे 6 महीने का मैं वॉल्यूम वेटेड एवरेज करूंगा। और सिंस नवंबर दिसंबर में हो सकता है प्राइस बहुत हाई रहा हो, तो अगर वॉल्यूम वेटेड एवरेज करने जाऊं तो सर आज जो प्राइस आ रहा है वो बहुत हाई आ रहा है, तो सर इतने हाई प्राइस में कोई कैसे लेगा? तो सेबी हैज रिलैक्स द प्राइसिंग नॉर्म्स। उसने क्या किया, उसने प्राइसिंग नॉर्म्स सीधे के सीधे, दे हैव रिड्यूस्ड इट, कम टू दी, आई विल जस्ट शो यू दिस स्लाइड। ऑफ 12 वीक्स और 2 वीक्स, सीधा का सीधा 12 वीक्स। मतलब अगर सोचिए, बोला कि अगर आपने प्लानिंग अभी किया है तो आप 12 वीक्स का ले लो। 12 वीक्स माने 3 मंथ्स। तो जब लॉकडाउन आया तो बुरी तरह से शेयर प्राइस वगैरह गिर गए, तो अगर गिर गया है तब वही एवरेज आएगा, प्राइस लो ही मेंटेन रहेगा। तो आप 12 वीक्स या 2 वीक्स का लास्ट वॉल्यूम वेटेड एवरेज ले लीजिए, इंस्टीड ऑफ जो हम लोग पढ़े थे 26 वीक होता था और 2 वीक होता था, राइट? उसके बदले ये ले लीजिए। लेकिन ये आप 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर 2020 के बीच इश्यू लेके आ रहे हो तब, राइट? When you are coming out with the issue between 1 July and 31 December 2020, तो ये ऑप्शन यू कैन अवेल। अगेन दिस इज ऑप्शनल, मगर अगर सोचिए आप दोनों वर्कआउट कर सकते हो कंपनी में इंटरनली कि 26 वीक करके देखते हो, अगर वो वाला ठीक आ रहा है तो गो अहेड विद दैट। बट आप सोचते हो कि नहीं वो बहुत हाई प्राइस हो जा रहा है, तो गो अहेड विद द 12 वीक्स वाला। तो इट इज अप टू यू, इट इज ऑप्शनल प्राइसिंग, नॉट मैंडेटरी, राइट? बट इट इज ओनली वन टाइम, वैलिड टिल 31 दिसंबर 2020। बाद में फिर वही 26 और 2 वीक्स वाले ही काउंट करोगे। क्लियर? सो दिस इज द प्राइसिंग। Then one major change which has come is pricing for stressed industries, or you can say for companies having stressed assets. ये क्या हुआ, ये उन लोग के लिए है जिन कंपनियों में स्ट्रेस्ड एसेट्स है, मतलब जिनकी हालत बहुत बुरी है, उनको कैसे जैसे सरवाइव करना है। उनके प्राइसिंग नॉर्म्स को सेबी ने रिलैक्स किया, उनके अदर ऑब्लिगेशंस को सेबी ने रिलैक्स किया, and then they made it कि they can come out with the preferential issue. Accordingly, a new sub-regulation 164A is now inserted to make them survive. सर ये स्ट्रेस एसेट्स अगर आप बता रहे हो तो थोड़ा इलाबोरेट करो कि होते क्या है सर? मैं बताता हूं। फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड कि बेनिफिट आया क्यों ये रेगुलेशन 164A। पहला तो स्ट्रेस्ड कंपनियों को हेल्प करने, क्योंकि उनकी हालत बहुत खराब है। सेकेंड, उनको प्राइसिंग नॉर्म्स और टेक ओवर से भी रिलैक्सेशन दे दिया। मतलब प्रेफरेंशियल इशू में याद रखिएगा टेक ओवर से रिलैक्सेशन नहीं है। मतलब अगर आप 25% और मोर चले जा रहे हो तो ओपन ऑफर करोगे और 1 साल में 5% आप ले सकते हो, राइट? उससे ज्यादा नहीं। बट यहां पर क्या किया, द सेबी हैज कम आउट विद द रिलैक्स्ड प्राइसिंग नॉर्म्स फॉर दी स्ट्रेस्ड कंपनीज एंड टेक ओवर रेगुलेशंस में एग्जम्पशन दे दिया। तो सर एक बार बताएंगे क्या है स्ट्रेस्ड एसेट्स, किसको बोलते हैं? अ कंपनी विल बी सेड टू हैव स्ट्रेस्ड एसेट्स अगर वो 2 कंडीशन, इन तीनों में से 2 of 3, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर दे, एनी 2, तो इट विल बी कंसीडर्ड एज इफ हैविंग स्ट्रेस एसेट्स। क्या है? अगर उसने सारे डिफॉल्ट अपने सारे डिस्क्लोज कर दिए एंड वो डिफॉल्ट 90 डेज से ज्यादा चले आ रहे हो, कंपनी एक इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट में एंटर किया हो आरबीआई के साथ, मतलब उसकी हालत इतनी बुरी है कि उसको क्रेडिटर के साथ एग्रीमेंट करना पड़ रहा है फॉर स्ट्रेस्ड एसेट्स, और या फिर क्रेडिट रेटिंग उसकी डाउनग्रेड होकर डी तक आ गई हो, डी मतलब एकदम डाउनग्रेड हो गई। अगर 2 कंडीशन आउट ऑफ 3 2 कंडीशन सेटिस्फाइड हो गए तो मान लिया जाएगा कि ये दीन दुखी है, एकदम आत्मा है ये। समझ गए? मतलब कैसे पहचानोगे कि इसकी आत्मा बड़ी दुखी है? इन तीनों में से 2 कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए तो समझ जाओ कि इसकी आत्मा बहुत दुखी है, राइट? और अगर 2 नहीं होता तो नहीं, सुख है ये, इसको अभी भी सुख है। समझ गए? सर सुनिए ना, मेरा एक वाइल्ड थॉट है सर, तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड है तो बोला तो एनी 2 तीनों हो रहा तो महादुखी है। समझ गए? तो फिर तो ले ही लो। तो दैट इज व्हाट द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर जाए देन दे कैन गो अहेड विद द प्राइसिंग। अब उसमें सर क्या क्या फैसिलिटी है? देखो क्या क्या है। पहला तो स्ट्रेस्ड एसेट्स में कुछ कुछ लोग इनएलिजिबल है, जैसे प्रेफरेंशियल इशू में हम लोग बोलते हैं ना, जो लोग लास्ट 6 मंथ में सोल्ड किए शेयर्स को, या फिर प्रमोटर लोग को कन्वर्टेबल वारंट्स मिले थे और वो लोग एक्सरसाइज नहीं किए, तो दे आर इनएलिजिबल अंडर द प्रेफरेंशियल इशू।
Similarly, here under the stressed wala assets में preferential issue में, if it is issued to the promoter group, it is not allowed. It cannot be issued to the willful defaulter, right? It cannot be issued to the promoter, person disqualified to act as a director. It cannot be issued to the person debarred by SEBI. So all these ineligible conditions are there. क्योंकि बोला पहले से ये डिफॉल्ट है, स्ट्रेस्ड है, आप ऐसे लोगों को दे रहे हैं जो डिफॉल्टर हैं, ऐसे लोगों को दे रहे हैं जो डिस्क्वालिफाइड है, विलफुल डिवार्ड मींस इकोनॉमिक ऑफेंडर है, तो मतलब दुखी आदमी और दुखी से जाके सर मतलब उसी से उधार मांग रहा है, तो हो सकता है कभी ऐसा नहीं ना। तो इसीलिए यू कैन नॉट इश्यू टू दीज पर्सन दीज शेयर्स, राइट। सो दीज आर द इनएलिजिबिलिटी फॉर दी स्ट्रेस्ड कंपनी। सर और कुछ है इसमें, और प्राइसिंग में बहुत बड़ा रिलैक्सेशन है, सिर्फ लास्ट 2 वीक्स। कितना इजी है ना, आप लोग देखो कितना बढ़िया याद रखोगे, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ लास्ट 2 वीक्स ओनली, लास्ट 2 वीक्स, मतलब 26 2 वीक्स वाला भूल जाइए, ओनली 2 वीक्स। तो सर इसमें भी कोई टाइमलाइन नहीं कब तक लेना है, नो, ये रेगुलेशन अभी आ गया है 164A, राइट। स्ट्रेस्ड एसेट जब तक रिवाइवल कर जाए, गवर्नमेंट वांट्स कि उनको ये रिलैक्सेशन दिया जाए ताकि उनमें लोग पैसा लगाए और वो चाहे तो शेयर्स किसी को दे सके, राइट। लेकिन इनके शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन की कंडीशन टफ है। बोलता है क्या, बोलता है जो फेवर में वोट करेंगे दे शुड बी ट्वाइस द वोट कास्टेड अगेंस्ट, मींस जितने लोग अगर सपोज करिए अगेंस्ट 10 हुए हैं तो फेवर 20 में आ जाने चाहिए, मतलब 21 हो जाने चाहिए फेवर। अगर 10 अगेंस्ट वोट हो गए हैं तो इट शुड बी 21, मींस इट शुड बी एक्सीडिंग द ट्वाइस। तो 10 का 20 होता है तो 21 फेवर में वोट आ जाना चाहिए। सर सुनिए ना एक और चीज, सर अगर कोई वोट ही नहीं किया अगेंस्ट में तो ठीक है, नहीं किया तो नहीं किया। सर अगर अगेंस्ट में, सुनिए ना, अगेंस्ट में अगर कोई 5 वोट किया, 5 इन अगेंस्ट, 5 अगेंस्ट किया तो एटलीस्ट 11 शुड बी इन फेवर पब्लिक कैटेगरी के। ओ सर आप समझ गए सर कि दिस वोटिंग इज रिक्वायर्ड, यस इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। सर इसके अलावा और भी कुछ ऐसा है जो इसमें और चाहिए होता है, यस बोलता है ये तो पब्लिक कैटेगरी से, और अगर सपोज करिए उस कंपनी में कोई प्रमोटर ही नहीं है, मतलब प्रमोटर है तो डबल चाहिए, मतलब एक्सीडिंग डबल, और प्रमोटर नहीं है तो देन ये 3 टाइम्स होना चाहिए। मतलब अगर प्रमोटर नहीं है और पब्लिक में 10 अगेंस्ट आए हैं तो 30 शुड बी इन फेवर इफ देयर इज नो प्रमोटर, और इफ देयर इज अ प्रमोटर देन एक्सीड द ट्वाइस, इफ देयर इज नो प्रमोटर देन थ्राइस, राइट। ताकि पब्लिक लोग कभी ऐसा नहीं बोल पाए कि पब्लिक का साथ होना चाहिए, बिकॉज ये स्ट्रेस्ड है कंपनी, स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं, तो पब्लिक शुड बी टुगेदर विद द कंपनी। तो इफ देयर इज नो प्रमोटर थ्राइस, इफ देयर इज अ प्रमोटर एक्सीडिंग ट्वाइस, अगेन थ्राइस अगर कोई प्रमोटर नहीं है, राइट। सर आप समझ गए प्राइसिंग। इसमें और भी कुछ कंबरसम प्रोसेस है, मतलब पैसा तो उठाने के लिए बहुत बोल दिया, बहुत इजी तरीका है, लेकिन कुछ कंप्लायंस तो देखने होंगे ना। कंपनी की हालत बहुत बुरी है, किसी आप समझो किसी दीन दुखी को जब आप कोई ऐसा आदमी डूबता हुआ आए आपके पास और उधारी ले जाए तो आपका दिल नहीं धड़केगा, धड़केगा ना। तो वैसे ही सेबी का भी धड़कता है। वो बोला अगर ऐसे आदमी को पैसा लिया है मार्केट से तो उसके ऊपर एक मॉनिटरिंग एजेंसी बैठा दो, मॉनिटरिंग एजेंसी जो मॉनिटर करेगा। जो आईपीओ वगैरह में याद है अगर 100 करोड़ का थ्रेशोल्ड वगैरह ज्यादा हो तो मॉनिटरिंग एजेंसी आता है, वैसे ही मॉनिटरिंग एजेंसी आ जाएगा। लेकिन अभी एग्जिस्टिंग में प्रेफरेंशियल इश्यू में नहीं आता मॉनिटरिंग, बट अगर आप इस वे में कर रहे हो यहां से तो मॉनिटरिंग एजेंसी आ जाएगा। तो सर समझ गए, मॉनिटरिंग एजेंसी आ जाएगा, यस मॉनिटरिंग एजेंसी विल कम। मॉनिटरिंग एजेंसी कब तक रहेगा, जब तक वो 95% ऑफ द प्रोसीड्स आर यूटिलाइज्ड। वो किस लिए होता है, वो इसलिए होता है कि बेसिकली दे गिव एन अपडेट। क्या अपडेट देते हैं कि कितना कहां यूज हुआ, कैसे हुआ, वो अपडेट देते हैं। दैट इज कॉल्ड द मॉनिटरिंग एजेंसी। और इनकी ऑडिट कमेटी विल ऑल्सो मॉनिटर प्रोसीड को। तो सर कंप्लायंस वाइज अगर पूछे तो हम ये लिख सकते हैं स्ट्रेस्ड एसेट्स वाली कंपनियों में कंप्लायंस बढ़ गए हैं, राइट, कंप्लायंस बढ़ गए हैं। ऑप्शनल प्राइसिंग वी हैव डिस्कस्ड, मैं आपको बता ही चुका हूं। इसके अलावा मालूम आप ये भी रख के रखिए कि क्रैपिंग एक्विजिशन में, ये आपके उस मैट में नहीं है, क्रीपिंग एक्विजिशन में सेबी ने थ्रेशोल्ड बढ़ा दिया है। जो हर फाइनेंशियल ईयर में 5% है ना, उसको फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर ओनली FY 2021 दे हैव मेड इट 10%। टेक ओवर कोड में क्रीपिंग एक्विजिशन का थ्रेशोल्ड है 5% फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर, बट for this financial year 2021 the SEBI has made it
10%, तो ये भी याद रखिएगा। फिर उसके बाद कुछ चेंजेस आया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को लेके। उसमें क्या है सर, वो भी मैट में था सप्लीमेंट में। हाँ, आपके सप्लीमेंट में लिखा है कि 16 जून को सेबी अमेंडमेंट लाया है। क्या है वो अमेंडमेंट? अमेंडमेंट ये है कि पहला तो उन्होंने डी क्लासिफिकेशन ऑफ स्पॉन्सर को अलाउ कर दिया है। जैसे अगर आप एलओडीआर में पढ़ते होंगे कि आप अपने आप को रीक्लासिफाई कर सकते हो एज अ प्रमोटर। सिमिलरली आप इनविट में, याद है ना, स्पॉन्सर्स होते हैं उन स्कीम में, तो उनके डी क्लासिफिकेशन को अलाउ कर दिया है। सेकेंड, अभी तक आप पढ़े थे ना कि एक यूनिट में 25% से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता कोई भी। नो पर्सन अदर देन दी मेन स्पॉन्सर शुड इन्वेस्ट मोर देन 25%। आप पढ़िएगा, क्योंकि ये सब आप इनविट वगैरह पढ़ते नहीं हो ध्यान से, तो अभी तक हम लोग यही पढ़ते हैं। बट अब से भी बोलता है कि दे कैन इन्वेस्ट इन द यूनिट मोर देन 25% इफ कंसेंट ऑफ 75% ऑफ यूनिट होल्डर इज ऑब्टेन्ड। राइट? अगर उतने लोगों का कंसेंट आ जाए तो फिर एक पर्सन जो स्पॉन्सर नहीं है वो भी इसमें 25% से ज्यादा इनविट में इन्वेस्ट कर सकता है। सो दैट रिस्ट्रिक्शन इज नाउ रिमूव्ड, बट विद अ कंडीशन। तो ये कंडीशन क्या है कि 75% लोगों का कंडीशंस आ जाए। तो दैट इज रिलेटिंग टू द इनविट। सर फिर हम लोग एक और सुने, एक हम लोग जब सप्लीमेंट्री पढ़ते हैं ना तो बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। एक सैंडबॉक्स लिखा होता है सर, 5 जून 2020 को बोलता आया है फ्रेमवर्क। सर ये सैंडबॉक्स क्या है? हम लोग तो देखते हैं तो सैंडविच टाइप का याद आता है। सैंडबॉक्स इज द प्रोसेस, लाइक होता क्या है, सैंडबॉक्स इज वाइडली यूज्ड इन यूके। दे हैव स्टार्टेड ओपन स्टैंडर्ड बैंकिंग नॉर्म्स आल्सो विद द बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ सैंडबॉक्स। जब जब हम लोग कुछ भी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में रिवोल्यूशन देखते हैं, लाइक बैंक के पोर्टल पे कि अच्छा आप ये करो, देखो वहां चला गया डेटा, अच्छा ओ यहां से पैसा डाले सर वहां ट्रांसफर हो गया, यस, अरे सर वहां पैसा डाले उसमें ओटीपी आ गया, यस, उसमें मैसेज तुरंत जनरेट हो गया डेबिट और क्रेडिट का, यस। सो ऑल दीज आर डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, इनोवेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। मोर एंड मोर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज डेवलपमेंट टुक प्लेस और टेक प्लेस थ्रू दी सैंडबॉक्स कंसेप्ट। एक तरह से ये इनोवेशन है। तो अगर आप लोग देखे होंगे आरबीआई भी सैंडबॉक्स लेके आया, आईआरडीए the Insurance Regulatory Development Authority, they have also come out with this concept of sandbox. Similarly, SEBI has also released a paper on this sandbox. उन्होंने ही बोला है कि they have come out with the sandbox concept. क्या है उनको sandbox concept? उन्होंने बोला कि like say for example, if it is the innovation is genuine and they want it to be tested, means the entity, then they should be allowed for this. Then there will be a limited testing and they should ensure there will be no risk to the financial statement, financial system, and then thereafter it can be ready for post testing. मतलब सर समझे नहीं ये बात? समझे क्या? सेबी बोली पहले हम लोग सिर्फ कुछ दिनों तक, मतलब कुछ सालों तक, महीनों तक ओनली रजिस्टर्ड एंटिटीज को अलाउ करेंगे। रजिस्टर्ड एंटिटीज मींस हम लोग रजिस्टर्ड एंटिटीज जो हम लोग के साथ रजिस्टर्ड है सेबी के, उन्हीं लोगों को अलाउ करेंगे कि वो अपनी टेक्नोलॉजी को, अपने न्यू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स को हमारे सिस्टम में एक डमी सॉफ्टवेयर की तरह चला के, इट्स अ वर्चुअल सॉफ्टवेयर, चला के टेस्ट ट्रायल करे। जैसे आप लोग सुनते हो ना, कुछ भी चीज को लॉन्च करने के पहले उसका एक ट्रायल होता है। एक वर्जन को जब आप सॉफ्टवेयर को देखते हो आप बहुत खुश होते हो कि अरे वाह इतना बढ़िया दिख रहा है। उस सॉफ्टवेयर के पहले भी एक ट्रायल होता है, एक रॉ फॉर्म होता है उसका, उस मूवी का भी रॉ फॉर्म होता है जिसमें लोग देखते हैं कि ओके एवरीथिंग इज परफेक्ट। सो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में क्या होता है ना, ये एंटिटीज आके सेबी को हेल्प करेगी कि देखिए हमारा ये और चीज ऐसे बढ़ सकता है, दिस कैन बी डेवलप्ड मोर टेक्निकली लाइक दिस। तो ये सब वो बताएंगी। तो ये सब बताने के लिए चाहिए क्या, सेबी को उन कुछ हद तक उनको डेटा अलाउ करना होगा, नहीं तो अदरवाइज सिस्टम को समझेंगे कैसे वो। सपोज करिए सेबी का मार्केटिंग सिस्टम है, इफ आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड फ्रॉम सेबी कि अच्छा आप लोग कैसे जनरेट करते हो, आप लोग की रिपोर्ट यहां से कहां जाती है, unless I know these things, how I will develop the technological product? So I will need some testing, I will need some access to the SEBI information. तो SEBI वो सब allow करता है, provided it is a limited testing, provided no risk is there to the financial statement. So basis on these, they allow these entities to go for a sandbox. बस कौन सी entity जो registered है SEBI के अंडर में, only those अभी
लेटर ऑन सेबी ने कहा है कि वो हो सकता है जब इसकी सक्सेस होगी तो सबके लिए ओपन कर दे, कि अगर जिसको भी लगे कि दे कैन सजेस्ट सम न्यू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट तो दे कैन कम एंड हेल्प सेबी। सेबी हर किसी के भी, अभी आप सोचोगे सर हर कोई जाके सजेशन देगा, ले लेगा, मेरा भी है, नहीं। सेबी बोलता है रजिस्टर्ड एंटिटी में देखो कैसे करेगा, प्रोसेस है। पहले वो एक एप्लीकेशन देगा, सेबी उस एप्लीकेशन को रिव्यू करेगा और अगर लगेगा कि सुटेबल है तब तो गो अहेड करेगा, लगेगा नहीं सीधा हटा देगा। जब उसको लगेगा कि इसके टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट ये बता रहा है जो अच्छा होगा, इससे डेवलपमेंट हो सकता है, तो सेबी यस भी करेगा और उसको इवैल्यूएट करेगा, इवैल्यूएशन स्टेज। जब इवैल्यूएशन करने के बाद भी सेबी कन्विंस हो जाएगा कि यस इट कैन बी डन और उसका एप्लीकेशन अप्रूव कर देगा, देन देयर विल बी टेस्टिंग। टेस्टिंग कैसे होगा? डमी सॉफ्टवेयर में, मींस कुछ डेटा वैसा लेके, मतलब सेबी के कुछ डेटा शेयर करके, कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करके उसका ट्रायल टेस्टिंग होगा और अगर वो सही हो गया तो देन दे विल गो अहेड विद दिस, राइट? सो दैट इज द प्रोसेस। वंस टेस्टिंग इज डन देन द सैंडबॉक्स एग्जिट क्राइटेरिया विल बी ट्रिगर, मतलब आप उससे बाहर निकल जाओगे एंड कंप्लीट सॉफ्टवेयर और पोर्टल विल बी डेवलप्ड। So this is the process whereby any technology developer will come or will suggest some innovative products or development with the SEBI on a test trial basis on a certain norms, right? Again and again, इसीलिए बार बार बताया आपको कि SEBI ensures कि कोई भी जो innovative things लेके आएगा वो genuineness होनी चाहिए। ऐसा नहीं बस माइंड में आया चलते हुए आ गया, उसके साथ उसका खुद का रेडी प्लान होना चाहिए, नहीं तो वो एप्लीकेशन ही अप्रूव नहीं होगा, राइट? So this is the regulatory sandbox process. Then RTA, सिक्योरिटाइजेशन में भी सेम, RTA पे क्या हुआ ना, एकदम सेम है। जो प्रोसेस था RTA का हैंडलिंग करने का, इन्वेस्टर ग्रीवियंस या फिर स्कोर कंप्लेन का, वो सब टाइम पीरियड एक्सक्लूशन कर दिया। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं टिल 31 जुलाई, राइट? हम लोग अभी भी थोड़ी देर पहले, जो अभी 30 सितंबर तक हो गया, कुछ ही मिनटों पहले पढ़े हम लोग, रिड्रेसल ऑफ ग्रीवियंसेस। आपको पता होगा स्कोर्स के थ्रू कंप्लेन आती है तो 15 दिन में, नॉर्मली आती है तो 30 दिनों में। तो अब सेबी ने क्या किया, वो टिल द पीरियड ऑफ जुलाई 31 बोला कोई डेज काउंट नहीं होगा, मतलब 23 मार्च से लेकर 31 जुलाई के बीच में माना जाएगा कि वो कोई दिन ही काउंट नहीं हुआ, जीरो, राइट? सो ऑलरेडी कवर्ड ये पॉइंट। क्रेडिट रेटिंग में थोड़ा स्ट्रिक्ट नॉर्म्स ले आया, बोला क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को अगर कोई लोग, जैसे क्रेडिट रेटिंग जब होता है ना तो किसी का जब डाउनग्रेड करती है तो उनसे अगर वो डाउनग्रेड हुई रेटिंग कोई भी नॉन कोऑपरेटिव रह जाती है फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ और मोर, राइट? तो बोला इफ देन डाउनग्रेड टू द नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड, मींस इफ दे आर नॉन कोऑपरेटिव फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, जिस दिन भी क्रेडिट रेटिंग ने डाउनग्रेड किया और उसके 6 मंथ तक वो लोग नॉन कोऑपरेटिव रहती है, तो देन नॉमेनक्लेट देम एज अ नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड। वार्निंग, आपको पता है ना, ए प्लस, इट डिपेंड्स कि आपका इकरा कर रहा है, राइट, कि केयर रेटिंग कर रहा है। तो जब भी वो लोग रेटिंग करते हैं, अगर वो डाउनग्रेड करे और आप नॉन कोऑपरेटिव रहते हो फॉर 6 मंथ विदाउट एनी अपडेशंस एटसेट्रा, तो देन दे विल ट्रीट यू एज अ नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड। दैट इज द रेडिकल चेंज विच हैज कम इनटू द क्रेडिट रेटिंग। अब आप उसके बाद जो अगर आपके सप्लीमेंट में चेंजेस देखोगे, वो आप देखोगे हम लोग कहीं ना कहीं पढ़ ही लेते हैं, जैसे इन प्रिंसिपल अप्रूवल रेगुलेशन 29 या 28 मर्जर वगैरह के लिए आप जब करोगे तो यू विल फाइल विद द स्टॉक एक्सचेंज अ कॉपी प्रायर टू दैट, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट? रेगुलेशन 30 मटेरियल इवेंट्स का डिस्क्लोजर, जब जब कुछ भी ऐसा मटेरियल चीज हो और आपको लगे वो मटेरियल है तो आप स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करोगे विद इन 24 आवर्स ऑफ हैपनिंग ऑफ द मतलब मटेरियलिटी और विद द नोइंग दैट इंफॉर्मेशन इज मटेरियल, ये भी हम लोग कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं। रेगुलेशन 13 शेयर होल्डिंग पैटर्न क्वार्टरली देते हो, दिस इज द रेगुलेटरी कंप्लायंस। एंड रेगुलेशन 33 रिलेटिंग टू द फाइनेंशियल रिजल्ट्स, जो अभी हम लोग पढ़े, विद इन 45 डेज या विद इन 60 डेज फॉर द लास्ट क्वार्टर। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, वी हैव केप्ट इट कन्फाइंड टू द पॉइंट विथ वन बाई वन। आप देखोगे हम लोग वन बाई वन वी हैव कंप्लीटेड द पोर्शन ऑफ द ICSI सप्लीमेंट मैट, जो कि कॉर्पोरेट फंडिंग के लिए अवेलेबल है आपके ICSI एग्जाम के लिए, दिसंबर 2020 एग्जाम के लिए वेबसाइट पर। उसी को हम लोग एक एक कर उसके साथ साथ पैरेलली समझते गए, कुछ IPO रिलेटेड, कुछ आपके डीमैट रिमैट प्रोसेस रिलेटेड, कुछ राइट इश्यू रिलेटेड,
कहीं पर पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट वेबर पढ़ा, फिर हम लोगों ने पढ़ा कि सर कहीं कहीं पर देर इज नो रिक्वायरमेंट कि हम लोग प्रायर डेज वो 2 वर्किंग डेज या 5 डेज ही फॉलो करें, कहीं 2 डेज भी होगा। सर हम लोगों ने नई चीज पढ़ी राइट एंटाइटलमेंट्स के बारे में जो डीमैट में ही होगा। वी हैव आल्सो अंडरस्टूड कि प्राइसिंग भी सेबी ऑप्शनल प्राइसिंग कर दिया फॉर प्रेफरेंशियल इशू, राइट? जो 1 जुलाई से लेकर दिसंबर एंड तक आ रहे हैं, यस, उनके लिए हम लोगों ने ऑप्शनल प्राइसिंग भी पढ़ा कि 26 वीक्स की जगह पर वहां पर 12 वीक्स हो गया, 2 वीक्स और 12 वीक्स। सर फिर हम लोगों ने पढ़ा प्राइसिंग नॉर्म्स फॉर स्ट्रेस्ड एसेट्स, वो 3 कंडीशन में से कोई भी 2 कंडीशन कंप्लाई करे तो दे आर ट्रीटेड एज अ स्ट्रेस्ड एसेट्स, और उसमें हम लोगों ने कवर किया कि क्या प्राइसिंग होगा, प्राइसिंग विल बी 2 वीक्स, राइट, भले ही उसमें कंप्लायंस ज्यादा हो। सर हम लोगों ने सैंडबॉक्स वाला कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया कि टेक्नोलॉजी इनोवेटर्स के लिए दे हैव ओपन द एप्लीकेशन प्रोसेस। इनिशियली इट इज ओनली फॉर द रजिस्टर्ड एंटिटीज ओनली विद द सेबी, लेटर ऑन इट कैन बी ओपन फॉर एवरीथिंग, राइट। फिर हम लोगों ने यूपीआई कॉन्सेप्ट भी सर आज नया पढ़ा कि यूनिफाइड इंटरफेस पेमेंट इंटरफेस कैसे होता है, ये भी फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3 में पूरा फुल्ली इंप्लीमेंट हो जाएगा। फेज 3 अभी तक आया नहीं, वी आर स्टिल इन फेज 2, राइट। So these are the basic amendments and don't get panic. इसके अलावा भी आप do watch our video classes I was referring you, wherein we have discussed in detail about all this in advance. So with these, the amendments for the December term is over. Thank you so much.